Good morning, dear students. Standard 12 Science Physics, Chapter number 3, Current Electricity. In previous lecture, we can discuss a relation between temperature and resistance and temperature and resistivity for metals, alloys and semiconductors and some numericals. Now today we have discussed exercise 3.2. Exercise 3.2 में a battery of EMF 10 volt, a battery of EMF 10 volt, an internal resistance 3 ohm is connected to a resistor if the current in the circuit is 0.5 ampere. So what is the resistance of the resistor? What is the terminal voltage of the battery when the circuit is closed? So EMF is given 10 volt. Internal resistance of the battery is 3 ohm. Electric current is 0.5 ampere. So first of all we have find the resistor from this equation. तो टर्मिनल वोल्टेज फिर से वही फॉर्मूला V इक्वल टू E माइनस आई आर. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर. तो I इज इक्वल टू R प्लस आर. R प्लस आर इज इक्वल टू E बाय आई माइनस आर. तो आपको फाइंड क्या करना है? रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस कैपिटल R इज इक्वल टू E बाय आई माइनस आर. E is equal to 10 volt divided by current is 0.5 minus internal resistance is 3. तो आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलेगी 17 एम्पियर. नाउ वी कैन फाइंड द टर्मिनल वोल्टेज. टर्मिनल वोल्टेज V इक्वल टू E माइनस आई आर. E is equal to 10 volt, current is 0.5 ampere and resistance is 17. Internal resistance is 3 ohm. तो 5 3s are 15. 10 minus 1.5 answer is 8.5 volt. तो next exercise 3.5. A room temperature 27 degree Celsius and 300 Kelvin. At room temperature 27 degree Celsius, the resistance of the heating element at room temperature 27 degree Celsius, the resistance is equal to 100 ohm. So what is the temperature of element if the resistance is found to be 117 ohm? यानी जब एक 117 ohm resistance होगा तब टेम्परेचर आपको फाइंड करना है. एंड अल्फा इज गिवन 1.7 into 10 raised to minus 4. तो रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर R2 is equal to R1 1 plus alpha T2 minus T1. R2 is resistance at temperature T2 and R1 is resistance at temperature T1. R2 is equal to 117, R1 is equal to 100. अल्फा की वैल्यू पुट करो, टेम्परेचर T1, T2 आपको फाइंड करना है. तो 117 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 42 माइनस T2 माइनस 27. इसका एलसीएम ले लो. 117 माइनस 100 तो 17 बाय 100 डिवाइडेड बाय 1.7 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 4. तो इसका आंसर आएगा 1000 प्लस 27 1027 डिग्री सेल्सियस. तो ये एक्सरसाइज 3.5 आंसर इज T2 इक्वल टू 127 डिग्री सेल्सियस. वंस अगेन T2 डिग्री 27 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर 100 ओम, 117 ओम. उस वक्त आपको टेम्परेचर फाइंड करना है. तो R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1. सिर्फ वैल्यू पुट करनी है. नेक्स्ट exercise 3.7. A silver wire has a resistance of 2.1 ohm at temperature 27.5 degree Celsius and the resistance of 2.7 ohm at temperature T2 is equal to 100 degree Celsius. So find the coefficient of resistivity of silver. तो वही फॉर्मूला R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1. R2 इज इक्वल टू 2.7 और उस वक्त जो टेम्परेचर है वो यहां पर आएगा.
R1 is equal to 2.1, temperature 27.5. 2.7 divided by 2.1 minus 1 is equal to alpha into 100 minus 27.5, तो 72.5. तो अल्फा इज इक्वल टू 0.6 डिवाइडेड बाई 2.1 इंटू 72.5. इसका कैलकुलेशन करोगे तो आंसर 0.00394. 3 पॉइंट आप शिफ्ट करो राइट साइड तो 10⁻³ डिग्री सेल्सियस इनवर्स. तो अल्फा इज इक्वल टू 3.9 इंटू 10⁻³ डिग्री सेल्सियस इनवर्स. नेक्स्ट exercise 3.8. A heating element using nichrome connect to a 230 volt supply draws an initial electric current of 3.2 ampere which settles after a few seconds to a steady value of 2.8 ampere. So what is the steady temperature of the heating element if the room temperature is 27 degrees Celsius? तो ये पहले आपको T1 दिया हुआ है, वो तो फिक्स हो गया. T2 आपको फाइंड करना है. दो करंट की वैल्यू पर से आपको दो रेजिस्टेंस मिलेंगे. R1 इज इक्वल टू V बाय I1 यानी 230 बाई 3.2 तो 71.875 ओम. R2 इज इक्वल टू V बाय I2 यानी 230 बाई 2.8. आंसर इज 82.143 ओम. फिर से वही फॉर्मूला R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1. R2 इज इक्वल टू 82.143. R1 इज इक्वल टू 71.875. 1 प्लस अल्फा इज गिवन. T2 आपको फाइंड करना है. T1 27 डिग्री सेल्सियस. तो 82.143 डिवाइडेड बाय 71.875 ये दोनों का आप रेशियो लोगे तो आंसर आएगा 1.1428 माइनस 1 और ये डिवाइड में आ जाएगा. तो 1.1428 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴. ये माइनस 27 इस साइड आएगा तो प्लस 27. तो आंसर इज 867.34 डिग्री सेल्सियस. एक्सरसाइज में लास्ट सम एक्सरसाइज 3.23. फिगर क्वेश्चन में दिया हुआ है. यहां पे बैटरी का वोल्टेज है 2 वोल्ट, यहां पर 1.5 वोल्ट. आपको फाइंड करना है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस बैटरी. 1.5 वोल्ट का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है. ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज गिवन 9.5 ओम. फिगर शोज अ 2 voltage potentiometer used for the determination of internal resistance of 1.5 volt cell. The balance point, ये इंपॉर्टेंट है. The balance point of the cell is open circuit is 76.3. यानी हमने लास्ट लेक्चर में जो पोटेंशियोमीटर की 2 एप्लीकेशन पढ़ी थी वो याद करें तो उसके अंदर हमने क्या लिखा था. जब की ओपन होगी K2 इज ओपन तो उस वक्त जो लेंथ होगा वो L1 और K2 जब क्लोज होगी उस वक्त लेंथ होगी L2. यानी यहां पर ओपन की है तो ये होगा L1 76.3 और जब की क्लोज होगी तब लेंथ इज 64.8 डिग्री सेल्सियस. सॉरी 64.8. इफ सेल इज ओपन सर्किट तो 76.3 एंड इफ सर्किट इज क्लोज्ड यहां पे लिखा है व्हेन द रजिस्टर ऑफ 9.5 ओम यूज इन द एक्सटर्नल सर्किट ऑफ द सेल तो आपको ये होगा L2, ये L1, ये L2. कैपिटल R इज 9.5. तो इंटरनल रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है. तो इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R इज इक्वल टू स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R L1 बाय L2 माइनस 1. R इज इक्वल टू 9.5, L1 इज इक्वल टू 76.3, L2 64.8. एलसीएम ले लो तो 76.3 माइनस 64.8 तो 11.5.
कैलकुलेशन करो तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गिवन सेल इज 1.68 ओम. इंटरनल रेजिस्टेंस is 1.68 ohm. So today we have discussed 4 exercise sums 3.7, 8 and 3.23.